Please come in. Good morning, sir. Good morning, Betty. Thank you, sir. Arts, history, geography and economics. Yes. Good. Then आपने English literature ले लिया, geography, history and English literature. बहुत अच्छी बात है. English literature पहले ले लेते तो बहुत अच्छा रहता आपको, है ना? ग्रेजुएशन में ले लेते, इसमें ऊपर 12th में मदद मिलती है आपको 12th उसमें ग्रेजुएशन में. फिर भी कोई बात नहीं, इतना साहस किया आपने, बहुत अच्छा किया. कैसा लगा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना? बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. कौन राइटर आपको, राइटर या प्ले राइट या फिक्शन या नॉवलिस्ट, कौन अच्छा लगा आपको? सर एक पर्टिकुलर ऑथर ना लगे, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोयम है द रोड नॉट टेकन, वो अच्छी लगी मुझे. हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसमें क्या कहते थे रोड नॉट टेकन? सर उसमें सर वो कहते हैं कि दो रोड जो है डाइवर्ज हो रही है, मतलब कि आपको दो ऑप्शंस है, आपके पास डिलेमा है कि आप कौन सा डिसीजन लोगे. तो इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश बोलते हैं. सर. यस सर. Sir, he shows that there is a dilemma to choose between the two roads, and you have to make a choice. Most of the people choose the path which is commonly traveled by other people, but he decides to choose the one less traveled by, and that has made all the difference. The less traveled should be taken or the most traveled should be taken? What do you say? Sir, The people, mostly that opt means gatanugatiko loka. The people follow each other blindly. That's why they walk and just on the same way, blindly, without thinking. But there are certain people, those who are taking a very particular road and means what to say, there is untraveled. So this is better or this is better? Sir, it depends upon the person. If the person is willing to take a risk. What would you like to? Sir, the less traveled by. Less traveled by. Okay. Why? So. Sir, because there are risks, but if you take bold and innovative decisions, then the results are also different, and they may be better than the one that are taken by the most of the people. So it depends on the person. If they are willing to take the risk, then the less traveled one, I think people should take that one. Any other poem that gives you any idea, any lesson to learn for your life or lifetime? So Life is a Stage by William Shakespeare. That is. So it tells that world is merely a stage, and all the men and women are that is a dialogue. Yes, sir. But there are 7 stages of life. It tells about the 7 stages of life, which teaches us that one should not be attached with the youthfulness. But in Indian culture, there are 4 steps of life, means yes. 4 stages of life. Yes. So how he is going to expand the stages of life, and how did he do? How did he manage? Means adding 3 more to the originals. Sir, in the modern context, he divided the phases in which the job. He also included the job phase, then the retirement phase, then a lonely phase where nobody listens, and he suffers from health problems and all. So he gave details of these stages more. So in that way, he added more phases. When we go through the literature, what do we find? Means the person who has got a very good acquaintance with the literature, he feels better, or the person who is not in close touch of such type of literature is feeling better, because there is simply, if you are in touch with the facts, then you will worry about it. But if you are not, and you are living a very simple life without knowing the things that it's going to happen the last moment and the next moment, then it would be better or to know about your future. Sir, it depends on the person's ideology as well. But I think the person who is acquainted with the literature is better, because
he is not, he has creativity of thinking, taking the situation in a different way as well. So he's not worried about the future and the fact as compared to the one not acquainted with the subject. Eute Bruto. Where is this dialogue? So this dialogue is in the play of William Shakespeare, Julius Caesar. What is the meaning of Eute Bruto? This is not English. No, sir, it's not English. This is Greek. Greek. So what is the meaning? So it means you to Brutus, because Brutus also betrayed him and killed Julius Caesar. But while he was a very fast friend and he was taking him to the throne just to be incarnated, yeah? Yes. So it is happened. What lesson we take from the literature? Maybe there is Hindi, English, Sanskrit, or whatever it is. The message we can take is from to see any condition from various perspectives. We can learn creativity and love for the nature. These all things we can learn. You will find that the authors, writers, and the narrators, whatever, they were not very well with the language, particularly. It was translated or transformed or transcripted or transphrased, right? So why it was needed means, suppose I am writing, this is the original piece of work, and it is transphrased. This is transformation, and it was not easy to learn. If you read the original script of the King Lear, then you cannot understand that. What आपको paraphrase पढ़ना पड़ेगा, translate पढ़ना पड़ेगा. Paraphrase पढ़ते हैं. Why it is so? Sir, because people have different languages all over the world, and the original context authors and books all have complex vocabulary. So make it easy for the people to understand and give the real essence of the text or books or anything. They are made easier, and easy words which people are familiar with are used. Where from this, as in Hindi is originated from Sanskrit? What is the source of English language? Evolution. I'm not sure, but maybe Greek and Roman. Greco-Roman and Irish. Yes, sir. And Latin, maybe. This is a bundle of languages, different languages. It has no own history. So what is the history of English language? Sir, it evolved gradually because of different languages. No, let me know about the first era, second era, third era, and fourth era, the modern English. What is Elizabethan era? Sir, Elizabethan era refers to the 16th century, where the genre of writing changed, in which the genre shifted to fiction, love stories, and the content of the writing changed. So the era changed according to the content of the writing. My last question. What is structuralism and TG grammar? Transformational generative grammar. TG grammar. Sorry, Have you ever heard this term? Sorry, What are the basic structures? There are three structures: basic structures, deep structures, and surface structures of sentence. Sorry, sir, I'm not able to recall. I go home. What is this? What type of structure is this? Simple. Simple. Yes, exactly. How many? Simple structures. How many structures are there? Simple. 1, 2, 3, 4, 5, or 6, 7, 8, or 3, 4. What? How many? Sorry, sir. This I'll give you an idea, and you just derive these sentences out of that. This is SV, SVO, SVOO, SVA, SVC. 5 structures, simple structures. Derive the sentences out of that. My name is. No, SV. Subject and verb. I eat, I go, I sit. Yes, next. What is objective? Object.
SVO. I ate apple. I eat an apple. An apple. Yes. Next. SVOO. Sorry, sir, I'm not able to frame any sentence. I gave a book to my father. Yes. A book and father. 2O. Yes. Next, SVA. Subject, verb, and Adjective. adverbial. Adverbial. I go home. There is an adverb. Home is adverb or adjective? What is this? Adverb. Adverb of place. Place. Yes. Next, I am a teacher. What is teacher here? Person. Profession. It is. Who is teacher? I. What Yes, is sir. I? Teacher. I. So teacher is the complement to this subject. Subject. This is a complement. See, as we see, and you will be asked the structures. Prepare the structures, basic structures at least. Okay. So, कब है बेटा आपका इंटरव्यू? The 19th of March. 19th of March. March. Okay. आप हैंडबॉल खेलते हैं? जी सर. जी. 3 स्टेप्स क्या होते हैं? सर 3 स्टेप्स होते हैं कि अगर आपके पास बॉल है तो विदाउट ड्रिबल किए 3 स्टेप्स नहीं ले सकते. अगर आप लेते हैं तो फाउल में काउंट होता है. ओके. अल नीनो ने सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त किया? अभी रिसेंट स्टडी में कहा गया है यस, करेक्ट. तो कैसे? सर क्योंकि एल नीनो जो है ये हमारे मॉनसून को प्रभावित करता है, तो इसकी वजह से जो बारिश है वो कम ज़्यादा अगर हो तो उस प्लेस पे ड्रॉट आ सकते हैं. तो उसकी वजह से एक ये भी एग्जम्पशन दिया, अजम्पशन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है या ये नेचुरल कैलेमिटी या तो ड्रॉट या फिर फ्लड की वजह से जो है नष्ट हुई है, तो उसमें एल नीनो एक रीजन हो सकता है. वेरी गुड. क्या मृत्यु दंड जो है वो रेप्स को रोक सकता है? सब ये कुछ हद तक रोक सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, जैसे कि अभी रिसेंट चल रहा है लीगल टेररिज्म, जिसमें कि फेक केसेस देखे गए हैं, जिसमें कि पर्सनल बेनिफिट के लिए या ब्लैकमेलिंग के लिए हनी ट्रैप जैसे केसेस, जिसमें कि गलत केसेस कर दिए जाते हैं. तो एक इफेक्टिव एफर्ट नहीं होगा कि हम रेप को कम करने के लिए ये कर दिया जाए, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस नहीं होगा. ओके. अच्छा, अभी हाल ही में बहुत सारी जगह इलेक्शन हुए, बिहार में भी इलेक्शन हुए. बिहार में भी देखा गया इलेक्शन के दौरान लोक लुभावनवाद को अपनाया गया. क्या मानते हैं? सर ऐसे एलिगेशंस तो लगे थे कि वहाँ पे ऐसी स्कीम्स या फिर महिलाओं के बैंक में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए. तो ये एक पॉलिटिकली जो है वाइबल नहीं है, पॉलिटिकली सही नहीं है, क्योंकि ये वाइसनेस करता है वोटर के मन में. तो ये लोक लुभावन स्कीम से उस तरह देखा जाता है. ये लोक लुभावनवाद को हम लोकतंत्र के लिए खतरा माने या अनसुनी आवाज माने, क्या माने अकॉर्डिंग टू यू? सर लोक लुभावन तो डेफिनेटली खतरे है, क्योंकि ये इलेक्शन के टाइम स्पेशली अगर लोक लुभावन स्कीम्स या फिर प्रोग्राम्स लाए जाते हैं तो ये जो वोटर है उसके माइंड को चेंज करता है. तो इससे उसके जो रियल पावर है डेमोक्रेसी में वो नहीं होती. वो जो सही तरीके से डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है वो नहीं होता. तो ये गलत है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर ना होके एक पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो पूरा किया जा रहा है यहाँ पे. लेकिन ये अनसुनी आवाज भी तो हो सकती है, क्योंकि आज भारत में ज्यादातर जितनी भी योजनाएं बनती हैं, पॉलिसीज बनती हैं, वो सब बनती ही इलेक्शन के टाइम पर है. और वो इलेक्शन का टाइम ही मौका होता है अनसुनी आवाज के लिए. तो क्या ये अनसुनी आवाज नहीं हो सकती? जी सर, हो सकती है, बट
जैसे कि अनटारगेटेड ऐसे ही किसी को पैसे भेज देना वो सही नहीं है। बाकी अगर सोशल वेलफेयर के टारगेटेड लिए, भेजिए, अनटारगेटेड का मतलब क्या है आपका? अनटारगेट है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसको दिया जाएगा और किन्हें छोड़ा जाएगा। महिलाओं के वेलफेयर के लिए दिया जाए। बट सर सारी महिलाएं सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड या फिर सोशल बैकग्राउंड से नहीं आती, तो इसमें टारगेटेड किया जाना चाहिए जो कि इफेक्टिव रिसोर्सेज का यूज होगा। अच्छा एक चीज बताइए, अभी राजस्थान में अगर हम देखें तो शेखावाटी में जो लिटरेसी रेट है वो कंपैरेटिवली सर्दर्न राजस्थान के ज्यादा है, या मैं यूं कहूं राजस्थान में ओवरऑल ज्यादा है, करेक्ट? और वहीं पर अगर देखा जाए तो सेक्स रेशो वहीं पर सबसे कम भी है। व्हाई? सर क्योंकि लिटरेसी का मतलब ये नहीं कि आप जो माइंडसेट है वो चेंज कर पाए। अभी भी वहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है माइंडसेट वैसा ही है। और सबसे बड़ा रीजन है कि जैसे एजुकेशन आया तो उनके पास जॉब्स आई, इनकम आई, तो अब वो जो उनके पास एक्सेस है ऐसी टेक्निक्स का, नई टेक्नोलॉजी का, जैसे कि जेंडर या सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन किए जा सकते हैं, उनके पास जो रीच है वो बढ़ गई है, तो उसका गलत यूज जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसका मतलब मैं यूं कहूं कि पढ़ाई लिखाई जो है, एजुकेशन जो है, उसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, टेक्नोलॉजी तक रीच नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। सर वन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट ये है, बिकॉज क्योंकि हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो ये रीच है लेकिन उनका माइंडसेट जो है वो चेंज नहीं हुआ है। अगर लिटरेसी माइंडसेट चेंज कर दे तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट में से पॉजिटिव में चेंज हो सकता है। लेकिन अभी जब ये देखा गया है कि ऐसे एक्सेस मिली है उनको टेक्नोलॉजी से जिससे कि वो सेलेक्ट कर सके जेंडर, तो अभी भी वो बॉयज को प्रेफर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर शेखावाटी में, आप किसी भी शेखावाटी के किसी भी जिले में आप एसडीएम हैं और आपको सरकार ने एक कार्यभार सौंपा है कि आप यहाँ पर जो बढ़ती हुई सेक्स रेशो की जो सेक्स रेशो जो घट रहा है उसकी जो बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए, या तो उन वर्तमान की योजनाओं में नवाचार बताएं ताकि सेक्स रेशो को अप किया जा सके, या फिर आप अपनी ओर से कौन सी नई योजना और लाना चाहेंगे, वो आपको सरकार को सजेस्ट करता है। सर इसके लिए गर्ल्स स्पेसिफिक स्कूल बनाई जा सकती है जिसमें कि गर्ल्स का स्पेशली गर्ल्स के लिए हो, क्योंकि और वो भी रूरल एरियाज में, क्योंकि जहाँ पे गर्ल्स रूरल एरिया में अगर स्कूल पास में नहीं है तो ड्रॉप आउट रेट देखा गया कि ज्यादा है और उनकी सेफ्टी के लिए कंसर्न रहता है, तो सेफ्टी सुधारी जा सकती है। और इकोनॉमिक जो फ्रीडम है वो मिलनी चाहिए वुमेन्स को, जिससे कि अगर वो कंट्रीब्यूशन बढ़ा रही है अपनी फैमिलीज में, डिसीजन मेकिंग की पावर मिलती है उन्हें, तो धीरे धीरे उनका जो माइंडसेट है जो पेट्रियार्कल वो चेंज हो सकता है, जिससे कि आगे चल के जो गर्ल्स है उनको एजुकेशन मिले और जो माइंडसेट है कि बॉयज प्रेफरेंस वाली वो चेंज हो जाए। आर यू जेंडर बेस्ड? नो सर। सो व्हाई गर्ल्स स्पेसिफिक स्कूल्स? आज के, क्योंकि आने वाले समय में तो गर्ल्स 12th तक स्कूल में पढ़ सकती है लेकिन उसके बाद तो उसको सरवाइव तो दोनों को करना पड़ेगा, कॉलेज में तो कोएड ही एजुकेशन होगी। सो व्हाई गर्ल्स स्कूल? सर क्योंकि गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट जो है वो ज्यादा है, तो गर्ल्स को और उसके रीजन में ये भी है कि ड्रॉप आउट रेट को रोकिए, ड्रॉप आउट रेट को रोकिए, जेंडर स्पेसिफिक स्कूल्स मत क्रिएट कीजिए। पॉइंट समझिए, करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं कि रुपए की वैल्यू गिर रही थी, इस रुपए की गिरती हुई वैल्यू का संबंध स्मार्ट मूव से कैसे है? सॉरी सर प्लीज। रुपए का अवमूल्यन का संबंध स्मार्ट मूव से कैसे है? सर मैं स्मार्ट मूव से रिलेट वही मैं पूछ रहा हूं। सॉरी सर। ओके, वर्तमान में डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, क्या रीजंस हैं इसके? और सबसे ज्यादा डिवोर्स लेने में महिलाएं ही आगे हैं, और सबसे बड़ी बात वो महिलाएं आगे हैं जो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल
कहीं ना कहीं स्टेबल हो रही हैं, वो महिलाएं सबसे ज्यादा हैं। तो क्या महिलाओं का जो फाइनेंशियल स्टेबल होना, यानी कि एक तरीके से सिक्योर होना, क्या परिवारों को तोड़ना, ये दोनों बराबर पैरेलल चल रहे हैं? क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं? सर, महिलाएं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है तो उनके पास करियर अपॉर्चुनिटीज है जो कई बार हिंडर करती है। अगर फैमिलीज में अगर उनमें रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो कई बार ये केसेस भी देखे गए। उसके साथ उनमें अवेयरनेस है। तो जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाती है जो पहले नहीं उठाई जाती थी। तो इसके वजह से भी जो डाइवोर्स केसेस है वो बढ़े हैं। इट मीन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट या सिक्योर होना परिवारों को तोड़ना है। सर, परिवार को तोड़ना नहीं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बच्चे भी भी तो राइट्स अनाथ हो है। रहे हैं बेटा। बट ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल के राइट्स का भी तो प्रोटेक्शन है, क्योंकि अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो ये प्रोटेक्शन भी है कि उसके पास एक ऑप्शन है कि वो डाइवोर्स ले। तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महिला का होना जो है, ये भी हमारे समाज के लिए नेगेटिव हो गया, क्योंकि वो तो अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई। अब चाहे घर टूटे, चाहे बच्चे अनाथ हों, डजंट मैटर। सर, इसके लिए दूसरे उपाय भी है, जैसे कि माइंडसेट चेंज करना, जैसे कि उनके जो करियर है या फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो कम हो, जैसे कि ऐसी नौबत ही ना आए कि परिवार टूटे। डिस्क्रिमिनेशन इन व्हाट सेंस? डिस्क्रिमिनेशन सर इन द सेंस ऑफ कि डिसीजन मेकिंग पावर्स उनके पास नहीं होती फैमिली में। सबसे ज्यादा तो महिला के पास ही होती है। सर, वो डोमेस्टिक डिसीजन की बात नहीं, अगर बाहर की कोई डिसीजन या बड़े डिसीजंस लेने हो तो अब भी वुमेन की जो बात है वो नहीं सुनी जाती। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, आप महिला हैं, आप एसडीएम बन जाती हैं, एसडीएम लगी हुई है उपखंड में। जब आपकी शादी हुई थी तो परिवारों में, दोनों परिवारों में आपसी बहुत समझ थी कि बिल्कुल हमारी बेटी जो है वो नौकरी करेगी, ठीक है। आपके पति बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, बच्चों को संभाल नहीं पा रहे। अब उस स्थिति में पति आपसे कहते हैं कि या तो अगर मेरे साथ अगर आपको रहना है तो आप नौकरी छोड़ दो, और अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना है तो आप मुझे डिवोर्स दे दो। ऐसे कंडीशन में, और कंडीशन ही यही है, पतिदेव सुनने को राजी ही नहीं है, क्या करेंगे? क्योंकि डिसीजन तो आप ले सकते हैं। सर, अगर प्रॉब्लम बच्चों से रिलेटेड है तो जॉइंट फैमिली में रहा जा सकता है, जिससे कि उनकी केयर दूसरे मेंबर्स जो है फैमिली के उनके द्वारा की जा सकती है। तो एक बीच का मार्ग लिया जा सकता है, डिवोर्स ही एकमात्र उपाय तो नहीं है। लेकिन जॉइंट फैमिली तो है ही नहीं ना, फैमिली तो बाहर है पूरी। सर, तो आप हस्बैंड वाइफ ही हैं। सर, कम्युनिटी चाइल्ड केयर सेंटर्स भी है, तो वर्किंग आवर्स में तो उनको बच्चों को क्रैच में छोड़ेंगे? मतलब वर्किंग बच्चों आवर्स का, में। हाँ, बच्चों को क्रैच में छोड़ करके बच्चों की लाइफ खराब करेंगे? सर, जो क्रैच एरिया या फिर कम्युनिटी चाइल्ड केयर सेंटर है वहाँ पे भी उनके डेवलपमेंट के पूरा ध्यान रखा जाता है। तो उनके भी डेवलपमेंट हो रहा है, बराबर उनके ध्यान भी रखा जा रहा है। लेकिन पतिदेव तो राजी नहीं है कि मेरे बच्चे जो है वो क्रच में जाएं, वो तो राजी है कि मेरी पत्नी जो है वो बच्चों को पाले। सर, तो मैं, अगर वो कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो बच्चों को साथ में लेके जा सकती हूँ मैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो साथ में लेके जा सकती हूँ। उन्होंने तो यही कहा है, डिवोर्स दो या फिर मेरे साथ रहो नौकरी छोड़ के। सर, तो मैं डिवोर्स दूंगी। डिवोर्स देंगे सर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सर, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। सॉरी सर। और क्यों मनाया जाता है? सर, ये वुमेन जो एम्पावरमेंट है उसे प्रमोट करने के लिए मनाया जाता था कि वुमेन इक्वालिटी आए और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। प्रधानमंत्री महोदय भी अजमेर में आए थे, इसमें ये वैक्सीन का उद्घाटन कर गए थे, क्या था? सर, वो कैंसर से रिलेटेड वैक्सीन थी, जिसका कि जो 14 साल की जो लड़कियां हैं उनमें देखा गया कि 9 से 14 साल
ये जी सर 9 से 14 साल। तो उनमें देखा गया है कि कैंसर की समस्या, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर की समस्या बढ़ी है, तो उनके लिए ये एक प्रिवेंटिव वैक्सीन के रूप में लॉन्च की गई है। इंजेक्शन और वैक्सीन में क्या अंतर है? सर वैक्सीन जो है ये पहले दी जाती है प्रिवेंशन के लिए, जबकि इंजेक्शन जो है ये डिजीज या जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके बाद में दी जाती है। महिलाओं को इसमें ये पीरियड्स में ये जो है आपके लीव बनाने की मतलब कानून बनाने की बात चल रही थी, इसमें ये जो आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सर ये सरकार को कहा गया है कि इस पे एक एक्ट या ऐसे लाया जाए जिससे कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान जो है छुट्टी या ऐसी व्यवस्था की जाए। ये सरकार पे छोड़ा है। और इसे सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, बस इसके लिए गाइडलाइंस भी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ऐसा करोगे तो महिलाओं को इसमें ये जो नौकरियां वगैरह नहीं देगा, कौन देगा उनकी? ये तो इसको मतलब हर महीने आप उनको 2-4 छुट्टियां दे दो, है ना? तो ये तो उल्टा उनको नुकसान होगा। ऐसा ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट ने? तो सॉरी सर मैंने गलत क्या पढ़ा हो। राजस्थान सरकार ने एक डिस्टर्ब एरिया बिल भी किया पेश, वो क्या है? सर डिस्टर्ब एरिया बिल जो है ऐसे एरिया के लिए है जहाँ पे कम्युनल राइट या किसी वजह से अशांति अराजकता फैलती है, तो वहाँ पे ऐसे नियम लागू किए जाए जिससे कि वहाँ पे प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सीज कर दी जाए। क्योंकि ये देखा गया है जहाँ पे डिस्टर्ब ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है वहाँ पे कम प्राइसेस पे जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट है उनको अपनी जगह प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ के जानी पड़ती है, तो उन लोकल रेजिडेंट की बचाने के लिए उनके राइट्स को ये लाया गया है। महिला उत्थान के लिए ये आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू कर दी, क्या क्या है? सर इसमें एक तो है लखपति दीदी योजना, जिसमें कि महिलाओं की इनकम जो है 1 लाख से ज्यादा करने के लिए लाया गया है, और इसमें महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लाया गया है। अब क्या बदलाव कर दिया इसको, लखपति दीदी को और कितना कर दिया? सर पहले टारगेट जो है वो 3 करोड़ था, अब इसका 6 करोड़ टारगेट कर दिया गया है। और सर दूसरी जो स्कीम है मातृ वंदन योजना, जिसमें कि गर्भवती महिलाओं की हेल्थ के लिए लाया गया है और उनकी जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, चेकअप हो, इसके लिए लाया गया ताकि उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जा सके। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है, जिसमें कि उन्हें 1 करोड़ तक का 50 लाख तक का लोन दिया जाता है सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे। और माँ वाउचर योजना भी है जो भी ये रिलेटेड है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं जिसमें कि महिलाएं एक अपना ग्रुप बना के और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके, लोकल लेवल पे हैंडीक्राफ्ट या फिर अचार, स्पाइसेस ऐसे कुछ अपने ब्रांड्स बना के और अपनी इनकम जनरेट कर सके। और तो महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? सर 181। मैं आपको कुछ ये नाम क्षेत्रों में, उस क्षेत्रों में आप दो बहनों का नाम बताएंगे, राजनीति सर ख्यातनाम महिला होनी चाहिए। हाँ। अभी करंट की होनी चाहिए। जो ओके सर श्रीमती इंदिरा गांधी एंड निर्मला सीतारमन, श्रीमती निर्मला सीतारमन। प्रशासन में सर मिसेस किरण बेदी। और क्या किया उन्होंने? सर वो हमारे देश की पहली आईपीएस रही है और उन्होंने ट्रैफिक के लिए काम किए थे, ट्रैफिक सुधारने के लिए, और तिहाड़ जेल में भी रिफॉर्म्स किए थे प्रिजनर्स के लिए। और उपराज्यपाल कहाँ गिरी थी? सर मैं ठीक है, आगे बताइए। खेल में सर खेल में पीवी सिंधु, क्योंकि इन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक्स में सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते थे, पहली बार सिल्वर जीता था इंडिविजुअल में वुमेन की तरफ से। और शिक्षा के क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में सर मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा ने क्या क्या शिक्षा दी? शिक्षा सर आपको समाज सर लिंगानुपात कितना है आपका राजस्थान का? सर राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात चल रही थी,
तो क्या विश्वास प्रस्ताव लाया गया है क्या? सर वो लाया गया था लेकिन वो खारिज हो गया बहुमत से, ध्वनि मत से वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2026 क्या संशोधन किया है? सॉरी सर, 2026 का मैंने मैंने नहीं पढ़ा। 2 बच्चों वाला कल्चर था ना? अच्छा यहाँ जी सर, जो लोकल बॉडीज है सेल्फ गवर्नमेंट, उनमें पहले 2 बच्चों की लिमिट लगा रखी थी कि अगर जिनके 2 बच्चे हैं वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते, लेकिन अब वो लिमिट हटा के 3 बच्चों की कर दी। आपके हिसाब से ये क्या सही है फैसला सरकार? जी सर, कैसे? सर इसमें क्योंकि जब ये लागू किया गया था तब हमारे टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, तो हमें कितनी थी? सर ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। 3.6 हुआ करती थी जी तो सर। अंदर अब कितनी हो गई है? अब सर 2.0 हो चुकी है, जो कि हमारा टारगेट 2.1 है, उससे भी कम हो चुकी है। तो आपके आदर्श कौन है? सर APJ अब्दुल कलाम। क्यों? सर क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उन्होंने साइंटिफिक में हमारी साइंस में भी काफ़ी योगदान किया है। इंडिया की स्पेस जो है उनमें एक महारत हासिल की है, मिसाइल सिस्टम है वो डेवलप किया, और उसी के साथ उनका जो नेचर रहा है वो भी काफ़ी प्रेरणादायक रहा है, और गरीब परिवार से आते हुए आप में हमारे से देश। कौन से गुण हैं जिनके आधार पर आप अपने आप को आरएस अधिकारी योग्य मानती हैं? सर मैं एक तो ऑनेस्ट हूँ, और दूसरा एम्पैथी है, दूसरों की जो है प्रॉब्लम्स मैं आसानी से समझ पाती हूँ, और इनोवेटिव हूँ मैं, अगर जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिव यूज करें। ओके जी। आप तो अपने पति की ही प्रॉब्लम आसानी से नहीं समझ पाए। चलिए, ठीक है, ये प्रथम चरण समाप्त है आपके इंटरव्यू का।